بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اسلامی کوئز کا پہلا پروگرام ہے۔ جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں آن لائن اور آف لائن ان کو خوش آمدید۔ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، اس کے ہم نے کچھ رول رکھے ہیں جو حضرات خاص طور اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہم نے اس کے کس طرح حصہ لیں گے اس کا پہلے جو ہے ویڈیو بنا کر ڈالا تھا، تو جو پرچی آئی تھیں ان میں 3 حضرات کے جو نام آئے ہیں، جو پہلے ہمارے ہیں، دوسرے آیان بھائی ہیں بیٹھے ہیں، اور تیسرے جو ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کچھ رول ہیں وہ سن لیں۔ ہمارے کل 23 سوالات ہوں گے، یہاں دے رکھے ہیں۔ 1 سے 15 سوالات تک 4 آپشن ہوں گے، اور جو ہے لائف لائن ہوتی ہے 3 50-50 کال کرنے کی اور آڈینس کال۔ یہ تینوں سہولتیں جو ہے 1 سے 15 سوال تک جو ہے دی جائیں گی۔ اس کے بعد 16 سے 23 سوالات میں نہ تو کوئی آپشن ہوگا اور نہ ہی لائف لائن ہوگی۔ ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے جو ہمارے یہاں سوالات کے جواب دیں گے، ان کو 1 سے 15 سوالات جو ہوں گے اس میں جواب دینے کے لیے اس کو 7 سیکنڈ دی جائیں گے۔ اگر کوئی لائف لائن استعمال کرتے ہیں تو 30 سیکنڈ کا اور اضافہ کر دیا جائے گا، اور جو کال ملائیں گے اس کے کال لگانے کا جو وقت ہے اس کو روک دیا جائے گا، یعنی 1.5 منٹ کے اندر جو ہے ان سے بات بھی کرنی ہے اور جواب بھی جو ہے، یا آپ کو جو سوچنا ہے کہ ہمیں اس کا جواب آتا نہیں آتا، اس کو جو ہے ہمیں کال کرنی ہے، کون سی لائف لائن لینی ہے، اس کو بھی 1.5 منٹ کے اندر ہی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ نمبر 5، کال کرنے کا آپشن جو ہے، جیسے آپ کال کریں گے، کسی شخص نے جس کے پاس آپ نے کال کری انہوں نے اٹھا لیا، جواب بتا دیا تو آپشن ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے نہیں اٹھایا تو آپ کو ایک بار کال ملانے کی اجازت ہوگی، چاہے آپ انہیں شخص کو کال ملائیں یا دوسرے شخص کو کال ملائیں۔ اگر دوسری مرتبہ بھی اگر کسی نے نہیں اٹھایا تو یہ آپشن آپ کا جو ہے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 6، آڈینس کال کا جو استعمال ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ آپ کو اگر سوال نہیں آتا، جو یہاں آڈینس بیٹھی ہیں، آپ ان میں سے کسی سے ایک سے جو ہے اس سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 7، اگر کسی بات میں اختلاف ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اختلاف ہے، کسی کتاب میں کچھ لکھا ہے، کسی کتاب میں کچھ لکھا ہے، تو اس میں جو معتبر ہوگا اعتبار کیا جائے گا، جو ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر بتلایا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور دوسری کتابوں کے اندر اگر کسی میں اختلاف ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 8، آڈینس جو ہے جو یہاں سوال بتلائیں گے اور سوال کا جواب صحیح ہو جائے گا تو ہمیں تالیاں نہیں بجانی، اس کی جگہ ماشاءاللہ کہنا ہے۔ ہمارے پہلے مہمان خصوصیت طاہر بھائی ہیں، وہ آ جائیں انشاءاللہ جو ہے اس سے سوالات شروع کیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ کا پہلا سوال ہے، قمری تاریخ کی شروعات کب سے ہوئی؟ آپ کا پہلا سوال ہے، قمری تاریخ کی شروعات کب سے ہوئی؟ آپشن اے نبی کی پیدائش سے، آپشن بی نبوت سے، آپشن سی ہجرت سے، آپشن ڈی وفات سے۔ آپشن اے نبی کی پیدائش سے، آپشن بی نبی کی نبوت سے، آپشن سی ہجرت سے، آپشن ڈی وفات سے۔ کیا اس کو انگلش میں لکھ سکتے ہو آپ؟ آپ بتلا دیجیے اس کا آنسر ہے سی۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب جو ہے بالکل صحیح ہے۔ آپ کا دوسرا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کا دوسرا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن اے قصی، آپشن بی ہاشم، آپشن سی شیبہ، آپشن ڈی عبد المناف۔ سوال دوہراتا ہوں، اس کا آپشن دے جناب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن اے قصی، آپشن بی ہاشم، آپشن سی شیبہ، شیبہ، آپشن ڈی عبد المناف۔
ये आपका टाइम शुरू होता है। एक मिनट हो गया। लाइफ है ना, कौन सा लाइफ है? 50-50 ऊपर के दो मिटा दीजिए, ऊपर के दो। ऑप्शन सी सेवा। ऑप्शन सी, माशाल्लाह आपका सही जवाब। सवाल नंबर 3, कुरैश एबीसीडी लिखी ना, उसमें ऑप्शन लिखना, खाली सवाल नहीं लिखना, थोड़ा तेजी के साथ। सवाल नंबर 3, कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस दादा का लक़ब था? ए किलाब, बी फहर, सी किनाना, डी अदनान। आपका टाइम शुरू हो गया। कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस दादा का लक़ब था? ए किलाब, बी फहर, सी किनाना, डी अदनान। ऑडियंस पोल जी, अगर आप में से किसी शख्स को जवाब बतलाए तो बतलाइए, इनसे पूछ लीजिए आप। जी बता दीजिए। ऑप्शन बी। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल नंबर 4, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने लड़के थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी एक भी नहीं। बी 3। माशाल्लाह आपका सही जवाब। सवाल नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का क्या नाम था? ऑप्शन, सवाल नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का क्या नाम था? ऑप्शन ए बनु उमैया, ऑप्शन बी बनुल मुस्तलिक, ऑप्शन सी बनु मखजूम, ऑप्शन डी बनु हाशिम। सवाल नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का क्या नाम था? ऑप्शन ए बनु उमैया, ऑप्शन बी बनुल मुस्तलिक, ऑप्शन सी बनु मखजूम, ऑप्शन डी बनु हाशिम। ऑप्शन डी बनु हाशिम। माशाल्लाह आपका जो है सही जवाब। आप जो है माशाल्लाह 500 रुपए जीत चुके हैं। सवाल नंबर 6, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश के किस खानदान से थी? ऑप्शन ए बनु ज़ोहरा, ऑप्शन बी बनु हाशिम, ऑप्शन सी बनु उमैया, ऑप्शन डी बनु तैम। ऑप्शन फिर दोबारा सुन ले चाहे। बनु ज़ोहरा, ऑप्शन बी बनु हाशिम, ऑप्शन सी बनु उमैया, ऑप्शन डी बनु तैम। ऑप्शन सी बनु तैम। ये ऑप्शन डी है, ये जो डी है बनु तैम। जी माशाल्लाह आपका सही जवाब। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान वो कुरैश के जो है बनु तैम खानदान से थी। ये कुरैश के 10 खानदान थे जिनको हमने अपने सबक में तफसील से बतलाया था, तो उन्हीं खानदान में से एक खानदान बनु तैम है, तो उसमें से जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक था। सवाल नंबर 7, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश के किस खानदान से थी? ऑप्शन ए बनु मखजूम, ऑप्शन बी बनु असद, ऑप्शन सी बनु तैम, ऑप्शन डी बनु ज़ोहरा। ऑप्शन ए बनु मखजूम, ऑप्शन बी बनु असद, ऑप्शन सी बनु तैम, ऑप्शन डी बनु ज़ोहरा। वक्त खत्म होने से पहले दीजिए। कॉल करना चाहेंगे हम। तो करिए कॉल, रोक दो एक मिनट।
स्पीकर पर डाल के हैं। खत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कुरैश के किस खानदान से थी? ये खैरियत है। ये एक सवाल है, इसका जवाब चाहिए। जरा पहले सवाल सुन लें, उसका जवाब देना। कि एक सवाल में हम थोड़ा तक गए हैं, तो सवाल पहले सुन लें, उसके बाद जवाब देंगे। जब हम कहें जब जवाब देना आपने। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कुरैश के किस खानदान से थी? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कुरैश के किस खानदान से थी? ऑप्शन ए बनु मखजूम, ऑप्शन बी बनु असद, ऑप्शन सी बनु तैम, ऑप्शन डी बनु जोहरा। अभी एकदम बताना। हाँ जी, कितना टाइम है? 30 सेकंड। 30 सेकंड, 1 मिनट। बनु ज़हरा। आपका गलत जवाब। अफसोस के आप जो है 7वें सवाल पर भार हो गए हैं इंशाल्लाह। लेकिन आपको जो है हाजी जी अपनी तरफ से इंशाल्लाह आपको इनाम देंगे। अब खड़ी हाजी जी आ रही है, उनके 500 रुपए माशाल्लाह। ये एक इनाम हाजी जी की तरफ से माशाल्लाह जो है ये दिया जा रहा है, ये जो इनाम। माशाल्लाह, ठीक। उसके अलावा जो इनके सवालात रह गए वो हम मुख्तसर जो है सवाल बताकर उसका जवाब बतला दें, ताकि यहाँ के हजरात को जो है उसका इल्म हो जाए। क्योंकि हमारा एक बड़ा मकसद इस्लामी मालूमात हासिल हो। ये जो हमने मालूमात आपके सामने रखी हैं ये अहम मालूमात हैं। अल्लाह के रसूल की बीवी है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कौन से खानदान से है? खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कौन से खानदान से है? इसका सही जवाब था बी बनु असद से। एक कुरैश खानदान का जो है कबीला है बनु असद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां कुरैश खानदान से थी? ये सवाल थे इनके अगले। वो सवालात हम पढ़ देते हैं, उनके जवाब फौरन दे देंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां कुरैश खानदान से थी? इसका जवाब है 6 बीवियां जो है कुरैश खानदान से अल्लाह के रसूल की थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद लिए हुए बेटे का नाम क्या था? तो इसका जवाब था ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद लिया था। इनका वाक़या बड़ा दिलचस्प है, फ़ज़ाइल अमाल के अंदर शेख साहब ने तफसील से लिखा है, उसको वहाँ पढ़ना भी चाहिए और हमने एक बाकायदा वीडियो इस पे जो है बनाई थी, वो सुननी भी चाहिए। थोड़ा पीछे सवाल नंबर 10, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी? अल्लाह के रसूल की 11 बीवियां थी, तो अलग अलग कबीले से खानदान से थी, जैसे सवालात चलते हुए आ रहे हैं। तो है सफिया रजी अल्लाह अन्हा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10वीं बीवी है, 10वें नंबर की, उनका ताल्लुक हारून अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे उन्हीं के खानदान में से इनका जो ताल्लुकात था। सवाल नंबर 11, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ जो अशरा मुबश्शरा के अंदर साहबी हैं, वो कौन से खानदान से थे? तो इसका जवाब है बनु ज़ोहरा से। सवाल नंबर 12, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साड़ू का नाम बतलाएं। कि जो कई हमने 4 साहबी के नाम लिखे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है इन साहबी में से साड़ू कौन है? साड़ू का रिश्ता जानते ही हैं अब हज़रात। तो इसका जवाब था जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल नंबर 13, कौन सी बीवी की नमाज जनाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई? ये बड़ा एक अहम सवाल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ एक बीवी की नमाज जनाजा पढ़ाई। 2 का सामने इंतकाल हुआ, उनमें से एक की नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल ने पढ़ाई है। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का तो पहले इंतकाल हो गया, उस वक्त जो है नमाज जनाजा मशहूर नहीं थी। उसके बाद ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनका जो है इंतकाल बाद में हुआ, उनकी नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल ने जो पढ़ाई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के कुरैश किस खानदान से थे? ये एक सवाल है। तो इसका जवाब पहले भी आ चुका है, गोया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जिस खानदान से उसी खानदान से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु है, मैंने बतलाया था बनु तैम से। तो ये जवाब है।
खाना काबे में बुत लाकर किस शख्स ने रखे? ये कल का सबक था, उसमें भी ये जो है हमारी बात आई थी। तो इसमें अमर बिन लुहई एक आदमी था बनो खुजा खानदान से, जो है उसने लाकर रखे थे। यहाँ तक 15 सवाल हो गए, क्योंकि इससे आगे के लंबे सवाल हैं थोड़े से। अच्छा, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अब दूसरे हमारे मेहमानों खुसूसी मोहम्मद आयान है, वो तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी मोहम्मद आयान है माशाल्लाह। तो इनके लिए पहला सवाल है, अंग्रेजी साल की इब्तिदा यानी अंग्रेजी साल की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। ऑप्शन बी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। ऑप्शन सी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। ऑप्शन डी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। माशाल्लाह, आपका पहला सवाल जो है आपने सही जवाब दिया। सवाल नंबर 2 आपके लिए जो है दूसरा सवाल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त कितनी बीवियां जिंदा थीं? सवाल नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त अल्लाह के रसूल की 11 बीवियों में से कितनी बीवियां जिंदा थीं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। 50-50 जो ए और डी को मिटा दिया है। ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ये बाकी रहे हैं। बी 8, ऑप्शन सी 9। सवाल नंबर 8, खाना काबा की चाबी किस सहाबी के खानदान के पास है? सवाल नंबर 8, खाना काबे की चाबी किस सहाबी के खानदान के पास है? ऑप्शन ए, उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह अन्हु। ऑप्शन बी, उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु। ऑप्शन सी, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु। ऑप्शन डी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। उस्मान बिन तलहा। माशाल्लाह, आपका सही जवाब। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर थे और हिजरत नहीं की थी, तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से खाने काबे की चाबी मांगी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है चाबी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त के मुसलमान नहीं हुए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से फरमाया कि उस वक्त क्या होगा जब चाबी हमारे पास होगी और आप जो है चाबी के मोहताज होंगे। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मक्का फतह हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद जो है उस्मान बिन तलहा से चाबी मांगी, तो उन्होंने थोड़ा सा जो है इनकार सा किया। तो अल्लाह के रसूल क्योंकि फतह कर चुके थे, तो अल्लाह के रसूल ने थोड़ा सा जो है सख्ती के साथ कहा, तो चाबी दे दी। चाबी देने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सफाई करी खाने काबे की, उसमें नमाज पढ़ी। उसके बाद जो है उसकी चाबी उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को ही दे दी और कहा कि क़यामत तक आपके खानदान में ही चाबी रहेगी, और जब जो कोई इस चाबी को आपसे छीनेगा वो जालिम होगा। सवाल नंबर 8, कितनी बीवियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने में दफन हैं? सवाल नंबर 8, कितनी बीवियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने के अंदर दफन हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। आपका गलत जवाब। माशाल्लाह, अब चलिए ठीक है इंशाल्लाह। तो आ रही है, ठीक है। हाजी वासिफ साहब की तरफ से इंशाल्लाह इनके जो है 500 रुपए दिए जा रहे हैं। इनके सवालात जो हम पढ़कर थोड़े से जो बाकी रह गए हैं, इसका आंसर है 9 बीवियां। नहीं, ये इंतकाल का मतलब नहीं है ना। इसके बाद तो आपने वहां से नहीं, ठीक है, कुछ आप वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो चीज वो क्लियर नहीं होगी उससे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 3 निकाह मक्का के अंदर हुए।
उसके बाद सारे निकाह मदीने के अंदर हुए। लेकिन जो एक बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का के अंदर दफन है, और एक सबसे आखिरी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा जो है मक्का के अंदर दफन है। मक्का के करीब मकाम शरफ है, बल्कि हमने ये वीडियो कल डाली थी, कोई तवज्जो रखते तो उससे जो है ये मसला हल हो जाता है। बहरहाल इनका सवाल नंबर 10 था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किस सहाबी ने पढ़ाई? इससे अगला जवाब जो है ये था। तो इसका जवाब है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई है। सवाल नंबर 11, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु किस खानदान से थे? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का खानदान जो है बनु अदी था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु किस खानदान से थे? इनका खानदान जो बनु उमैया था। एक दिलचस्प सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफा का क्या नाम था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफा का क्या नाम था? इनके फूफा का नाम था जहश। ये हमने अपने जो है वीडियो के अंदर कई बार इस नाम का तज़किरा किया था। सवाल नंबर 14, ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हु के पहले शौहर का क्या नाम था? ज़ैनब बिन्त जहश जो अल्लाह के रसूल फूफा है, उनकी बेटी थी ज़ैनब बिन्त जहश। तो उनके पहले शौहर का क्या नाम था? उनके पहले शौहर का नाम था ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो अल्लाह के रसूल के मुंह बोले बेटे भी थे। इनका तज़किरा इससे पहले आया था। चलिए अब जो है तीसरे मेहमान खुसूसी हमारे आमिर भाई हैं, वो तशरीफ लिया है। सवाल नंबर 1, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का क्या नाम था? ऑप्शन ए बनु उमैया, ऑप्शन बी बनु मखदूम, ऑप्शन सी बनु जोहरा, ऑप्शन डी बनु हाशिम। फिर बतलाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का क्या नाम था? ऑप्शन ए बनु उमैया, ऑप्शन बी बनु मखदूम, ऑप्शन सी बनु जोहरा, ऑप्शन डी बनु हाशिम। बतलाइए। 50-50 शुरू के दो खत्म हो गए, सी बनु जोहरा और डी बनु हाशिम। माशाल्लाह, आपका सही जवाब। सवाल नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शादियां हुई? सवाल नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शादियां हुई? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। बताइए, ये बहुत आसान सवाल है। माशाल्लाह, आपका सही जवाब। सवाल नंबर 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का क्या नाम था? सवाल नंबर 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का क्या नाम था? ऑप्शन ए फातिमा, ऑप्शन बी बर्रा, ऑप्शन सी उमैमा, ऑप्शन डी सफिया। है ऑप्शन ए फातिमा, ऑप्शन बी बर्रा, ऑप्शन सी उमैमा, ऑप्शन डी सफिया। हम पूछे कि इनसे पूछें। चलिए, माशाल्लाह, आपका सही जवाब। सवाल नंबर 4, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का क्या नाम था? सवाल नंबर 4, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का क्या नाम था? ऑप्शन ए हाशिम, ऑप्शन बी अदनान, ऑप्शन सी वहेब, ऑप्शन डी वहाब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का क्या नाम था? ऑप्शन ए हाशिम, ऑप्शन बी अदनान, ऑप्शन सी वहेब, ऑप्शन डी वहाब। आप क्या कॉल करने की सुविधा, आप कॉल कर सकते हैं एक बार। हैं?
जहाँ मौजूद है उनको भी कॉल कर सकते हैं हैं और कोई उन्होंने वो कोई सोचा हो सवाल पूछना था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का क्या नाम था? ऑप्शन ए हाशिम, ऑप्शन बी अदनान, ऑप्शन सी उहेब, ऑप्शन डी वहब। सवाल यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का क्या नाम था? हेलो हेलो सुनिए सवाल सुनिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का क्या नाम था? ऑप्शन ए हाशिम, ऑप्शन बी अदनान, ऑप्शन सी उहेब, ऑप्शन डी वहाब। तो आप वैसे करके कर लीजिए। चलिए वहाब हो गया आपका। ये ऑप्शन भी जो खत्म हो गया है, तीनों लाइफ लाइन जो है आपकी खत्म हो गई हैं। सवाल नंबर 5, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल कितनी हिजरी में हुआ? सवाल नंबर 5, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल कितनी हिजरी में हुआ? ऑप्शन ए 45 हिजरी में, ऑप्शन बी 50 हिजरी में, ऑप्शन सी 52 हिजरी में, ऑप्शन डी 57 हिजरी में। हाँ, ऑप्शन ए 45 हिजरी, ऑप्शन बी 50 हिजरी, ऑप्शन सी 52 हिजरी, ऑप्शन डी 57 हिजरी। जी जवाब दीजिए। 20 सेकंड बाकी रह गए आपके। हाँ 45, 50, 52, 57। आपका गलत जवाब। इसका सही जवाब है 57 हिजरी। अफसोस है कि आप जो है सही जवाब नहीं बता सके और आप 500 रुपए भी जो है नहीं जीत सके। अफसोस जो है रहा। ठीक है इंशाल्लाह अब एक चांस और दे दें। चलिए एक सवाल और पूछ लेते हैं। आज जी कह रहा हूँ आपने अगर बतला दिया तो वो 5 के अंदर जो है हो जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का क्या नाम था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है नहीं पूछा। हाँ, दादी का पूछा था और अब नाना का। ऑप्शन ए फातिमा, ऑप्शन बी बर्रा, ऑप्शन सी उमैमा, ऑप्शन डी सफिया। आपका सही जवाब माशाल्लाह। सवाल नंबर 6, कौन सी बीवी का नसब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी का नसब माँ की तरफ से खत हाशिम से मिलता है? सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी का नसब माँ की तरफ से खत हाशिम से मिलता है? ऑप्शन ए ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन बी ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन सी सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन डी मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा। ऑप्शन ए ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी का नसब माँ की तरफ से, बाप की तरफ से नहीं, माँ की तरफ से हजरत हाशिम से मिलता है? ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा, सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा, मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा। ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा। माशाल्लाह आपका सही जवाब।
मोहम्मद, क्योंकि अभी बतलाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफा का नाम क्या था, जयश था, तो उनकी जो अहलिया है उनका ताल्लुक अल्लाह के रसूल खानदान से हो जाएगा, तो उन्हीं की बेटी जो है ज़ैनब बिन्ते जयश है। तो इस तरह कुछ सवाल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अगर हम तवज्जो से थोड़ा सा और सुने तो उससे काफी हद तक सवाल हल हो सकता है। सवाल नंबर 6, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, हाँ सवाल नंबर 7, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सबसे पहले इंतकाल कौन सी बीवी का हुआ? सवाल नंबर 7, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी का इंतकाल हुआ? ऑप्शन ए सौदा रजी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन बी हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन सी ज़ैनब बिन्ते जहश रजी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन डी ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रजी अल्लाह अन्हा। आपका गलत जवाब, ज़ैनब बिन्ते जहश रजी अल्लाह अन्हा का जो है सबसे पहले इंतकाल हुआ। ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा का तो अल्लाह के रसूल के इंतकाल से पहले इंतकाल हो चुका था। जवाब ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कि सबसे पहले कौन सी बीवी का इंतकाल हुआ, तो उसमें ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा का इंतकाल पहले हो चुका था, ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा का जो इंतकाल उसके बाद हुआ। जी माशाल्लाह, आपके 500 रुपये जो है 500 रुपये जीते माशाल्लाह, वो हाजी जी की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं। माशाल्लाह बैठे रहे अभी थोड़ी देर। हाँ चलिए आप बैठिए, उनके आप चलिए। उसके अलावा थोड़ा सा इनके पहले जवाब बतला दें जो बाकी रह गए, उसके बाद कुछ ऐलानात करना थोड़ा सा। कौन सी बीवी का इंतकाल सबसे पहले हुआ? ये आ गया जवाब, ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल नंबर 7, वो सवाल नंबर 8, बीवियों में सबसे आखिर में कौन सी बीवी का इंतकाल हुआ? जो अल्लाह के रसूल के वक्त 9 बीवियां जिंदा थी, तो 9 बीवियों में से सबसे आखिर में कौन सी बीवी का इंतकाल हुआ? उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा का जो है, उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा का सबसे आखिर के अंदर जो है इंतकाल हुआ है। सवाल नंबर 9, उन सहाबा में कौन से सहाबी अल्लाह के रसूल के दामाद हैं? जो सहाबी का नाम लिखे हमने कि इन सहाबी में से कौन से सहाबी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं? ए जुबैर, बैठिए थोड़े 2-4 मिनट इंशाल्लाह जल्दी। ए जुबैर, बी तलहा, और खाने का भी इंतजाम है सब हजरात का इंशाल्लाह। हमने कुछ मखसूस हजरात का कर रखा था, लेकिन शादी कम है, मखसूस हजरात भी कम आए, तो सब हजरात इंशाल्लाह खाना खा कर जाए इंशाल्लाह। तो चलिए 2-4 मिनट रुक जाइए। तो अबुल आस, इसमें 4 नाम लिखे हमने, जुबैर, तलहा, साद और अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हुम, क्योंकि हज़रत अली और हज़रत उस्मान को तो जानते हैं, लेकिन अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु जो अल्लाह के रसूल के दामाद हैं उनको जो है नहीं जानते, इसलिए खासतौर हमने इस सवाल का जो है इंतखाब किया। अशरा हुआ, अशरा में सहाबी अबू उबैदा नाम था, ये जो है सवाल था। अशरा हुआ अशरा सहाबी जो है अबू उबैदा, उनके वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए जर्रा, ऑप्शन बी अब्दुल्ला, इनके वालिद का नाम जो है अब्दुल्ला है, ये अपने दादा के नाम की तरफ जो है मंसूब हुए। जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का खानदान का नाम बनु असद। उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल की बीवी हैं, उनके खानदान का क्या नाम है? तो उनके खानदान का नाम है बनु मखजूम, क्योंकि बड़े जो है जबरदस्त खानदान था ये। और अबू जहल, इकरिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी इन्हीं के खानदान से थे, उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के खानदान से, एक ही खानदान से सब रहते थे। खिलाफत उस्मानिया, जो ओतुगुल वाली खिलाफत रही है, खिलाफत उस्मानिया की खिलाफत से पहले कौन सी खिलाफत थी? जस्ट पहले, इनसे फौरन पहले कौन सी खिलाफत थी? इसके ऑप्शन थे खिलाफत बनु उमैया, खिलाफत राशिदा, खिलाफत अलविया, खिलाफत अब्बासिया। तो इसका जवाब है खिलाफत अब्बासिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा के शोहर का नाम क्या था? अल्लाह के रसूल के नवासी उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा। एक कुछ बहुत पॉइंट के जवाब थे,
जहाँ तक साथी नहीं पूछ सके, आसान भी थे और जो है बहुत अहम थे। उनमें कुछ सवालात जो है, मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियाँ कितनी हैं, नवासी को नहीं जानते। अक्सर मुसलमान जो है पूछने लगे, ये नहीं मालूम कि नवासी है भी नहीं है, और है भी तो नाम मालूम नहीं। उनमें से एक नवासी का नाम आया था उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा, इनका निकाह जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ, और उनमें हमने चारों ऑप्शन लिखे थे, चारों नवासियाँ ही थी अल्लाह के रसूल की, चार नवासियों के नाम जो है हमने उसमें ऐड किए थे। उनमें से एक नवासी है उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह कौन से साहबी से हुआ? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इनका निकाह जो है अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर तफसील के साथ जो है ये बात लिखी हुई है, वहाँ इसको पढ़ भी सकते हैं, हमारी वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं इसको। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कितनी अहादीस मरवी हैं? 2000, 2170, 2210 और जो है 2715। इसका जवाब था 2210। ये जो है कुछ सवालात थे, थोड़ा सा अफसोस भी रहा कि जिन हजरात का नाम आया था उन्होंने वो मेहनत नहीं करी जो थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए थी, वरना तो हमारे सवालात हमारी वीडियो में अगर देख लेते तो इंशाल्लाह 15 सवाल तक जो है पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, 16 के बाद जो है मुश्किलात शुरू होती, लेकिन हमारे जो 6 सवाल थे तीनों वो पहले से जो है वो हो गए। अगले प्रोग्राम के ऐलान हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को जो है जारी रखेंगे, आप हजरात का साथ इस तरह मिलता रहेगा इंशाल्लाह। इसको जो है और आइंदा भी करते रहेंगे और इसको अच्छे लेवल पे करेंगे ना। दूसरा प्रोग्राम जो हमारा 11 मई को होगा इंशाल्लाह, 11 मई 2025 है ना। उसके जो है जो पर्चे जमा करेंगे उसकी तारीख है 11/4/25 से, यानी एक महीने पहले से जो है इसको हम दरखास्त लेनी शुरू करेंगे। एक महीने पहले इसका दोबारा इंशाल्लाह ऐलान करेंगे और 8/5/2025 तक जो है दरखास्त ली जाएंगी। हाँ, इस प्रोग्राम में जो है 15 साल से ऊपर के ही शख्स दरखास्त देंगे, ज्यादा छोटे नहीं, 15 साल से छोटे नहीं है ना, क्योंकि थोड़े सवाल मुश्किल होते हैं, तो पहले दूसरे सवाल में अगर चले जाएं तो फिर वो थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाता है इसका। नंबर 4 और जो है इसमें इंशाल्लाह हमारा इनाम जो है उम्रे का इनाम होगा इंशाल्लाह। जो हजरात 23 सवाल जो है बतला देंगे उन इंशाल्लाह उनको जो है उम्रे पर हमारे तरफ से जो है भेजा जाएगा इंशाल्लाह, और उसमें आप हजरात का इंशाल्लाह ताउन रहेगा। हाँ, इनाम जो है उम्रे का इनाम रहेगा इंशाल्लाह। जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा 4 महीने बाद तकरीबन, उसमें जो 23 सवाल बतला देंगे उसको इंशाल्लाह उम्रे पर भेजा जाएगा। और भेजने की शक्ल ये होगी जैसे आप हजरात अहले खैर हजरात हैं, इंशाल्लाह आप हजरात ही ताउन करेंगे तो हम सबके मिलने की तरफ से 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए हमने अगर जमा कर दिए इंशाल्लाह एक आदमी हमारी तरफ से उम्रे पे चला जाएगा, तो उसके उम्रे के हम हिस्सेदार बन जाएंगे। कुछ हम कहेंगे, कुछ आप देंगे, कुछ और देंगे इंशाल्लाह, कुछ और देंगे। उम्रे के लिए 23 सवाल के पूरे जवाब देना होगा नहीं, उसके लिए हम बतला दें थोड़ा सा प्रोसेस। तो नंबर 4 जो शख्स उम्रे का पैकेज का इनाम हासिल करेगा उसको उम्रे पर भेजा जाएगा, उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे। कोई शख्स कहे भाई हमने उम्रे का इनाम जीता है तो पैसे दे दी जाए, नहीं, उसको उम्रे पे ही भेजा जाएगा। नंबर 5 अगर तीनों शख्सों में से कोई भी 23 सवाल नहीं बतला पाया, 23 सवाल तक नहीं पहुंच पाया, हाँ 16 से ऊपर पहुंच गया, तो 16 से ऊपर पहुंचने के बाद जो सबसे आगे होगा उसको इंशाल्लाह एक को भेजेंगे हम। मतलब तीनों में से कोई भी शख्स जो है 23 सवाल नहीं बतला पाया तो लेकिन 16 से ऊपर पहुंच गया, अगर 15 से पहले तीनों ही हजरात अगर पहले आउट हो गए तो फिर जो है किसी को कोई इनाम, यानी वो जो इनाम होगा वो इनाम मिलेगा, उम्रे पर किसी को नहीं भेजा जाएगा। 16 के बाद जो तीनों में से जो शख्स जो है ज्यादा सवाल बतलाएगा उसको उम्रे पर भेजा जाएगा। है तीनों में से जो ज्यादा सवाल बतलाएगा है तो तीनों 23 पहुंच गए, तीनों को भेजेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, अगर 15 के बाद 16 पे सारे 16 काउंट होंगे तो कुरानदाजी की जाएगी फिर। हाँ, अभी आपने बात पूरी नहीं सुनी ना हमारी। अगर तीनों शख्स में तो कोई शख्स जो है 23 सवालात के जवाब नहीं दे पाए और 16 के बाद जितने भी जवाब दिए जाए तो उसमें जो ज्यादा आगे होंगे उसको जो है भेजेंगे, और तीनों के बराबर सवाल हैं तो फिर कुरानदाजी से जो है एक शख्स को भेजा जाएगा। इसके अलावा इंशाल्लाह जो हजरात आप जैसे हाजी जी ने और हजरात ने जो है इनाम दिए माशाल्लाह, इसी तरह ये अहले खैर हजरात इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे और भी देंगे, और कुछ से हम कहेंगे, कुछ से आप, और आप हजरात बैठे माशाल्लाह, जो भी इस
खैर के काम के अंदर जो है हिस्सा लेना चाहें तो इंशाल्लाह वो ले सकते हैं और नाम भी लिखवा सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो है इतना ताउन करेंगे या इस तरह का ताउन करेंगे, वो जो है अपने नाम लिखवा सकते हैं। तो पहला फायदा तो ये होगा कि जो शख्स उम्रे पे जाएगा उसमें हमारा हिस्सा हो जाएगा। 2-4-5 हजार रुपये अगर हमने दे दिए तो 5 हजार रुपये देकर भी हम जो है एक आदमी के उम्रे पे भेजने के जरिया बन गए, है ना। दूसरा फायदा ये होगा जो इस्लामिक चीजें हैं, जो अहम मालूमात थी, जो बहुत सारी अब भी रह गई और जो आनी चाहिए थी, जो हमें मालूम होनी चाहिए थी, वो अहम मालूमात जो है हमें मालूम नहीं है, वो लोगों के अंदर जाएंगी, लोगों के अंदर शौक पैदा होगा, तो उस दीनी मालूमात के फैलने का जरिया, उस इल्म के फैलने का जरिया जो है हम बनेंगे। तीसरा ये कि इसमें हमारी भी एक एतबार से जो है कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अपने इमाम की आप जो है एक एतबार से मदद भी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।